Can you see the screen, everyone? Yes, ma'am. Okay, so let us start. Okay. I think all of you have gone through the instructions, right? Today's instruction. Today we will do some numerical. Okay, not some. I will give you one numerical to solve at the end of the session, and within that time we have to solve, and you can submit that in the classwork. Okay, that I've already posted. I've given a slot. You can submit your assignment there. Today's classwork. Okay. So our lecture, this is a 14th lecture, and the topic that we'll learn today is runoff rainfall correlation. That means what? We will here deal with the relationship between rainfall and runoff. Okay, that means we will find a relationship, and what methods that we will use, we will learn here. There are several methods to estimate why we are finding this relationship. Relationship means we are finding the equation. Okay, equation um, between rainfall and runoff. Now why we are finding? Okay, basically what we are learning from our starting, that we must know the runoff. Why? Because runoff is playing very important role in many cases like flood. Okay, flood forecasting and all these things, they are playing very much vital role. So we must know, have idea about the runoff. Okay, and there are several methods. The first method that we have already discussed in our previous lecture is that using of hyetograph and infiltration curve. Okay, with the help of infiltration curve and hyetograph, how we estimate the quantity or the volume of the runoff. Okay, that we have learned. As we know that rainfall, precipitation minus runoff will give us the infiltration. We know this equation, precipitation minus runoff will give us the infiltration. We know we will collect this precipitation from different instrument like rain gauge and all. Okay, we learn about different methodology, how we will find out the precipitation, mean average precipitation and all. Now we also learn about the infiltration, how we will estimate the infiltration. Okay, so if we know this value, if we know the losses and all, infiltration losses, interception losses, if we subtract this, we can easily get the runoff also. Okay, so p minus I will give us the runoff. This was your with the help of infiltration curve. Okay, this was the first method. Now in this method we will learn about the second method. Okay, which is statistical in nature. That means here we will learn, we will give some idea about the probabilistic. Okay, we are dealing with the statistical analysis, so we will learn about it. Okay. Mm, See, these are the different methods how we will what are the topics that we will learn today. First topic is that determination of runoff. There we will see how many methods are there, how what are the different methods that we will use for calculating the runoff. Okay, then we will deal with the rainfall runoff relationship. Today's main topic is this one only. We have to find the rainfall and runoff relationship. That means we have to find some equation, or we can say we have to develop a model. Okay, here model means your equation which will represents the relationship between rainfall and runoff. Okay, one is here independent variable and another is dependent variable. Now, and can anyone say what do you understand by dependent variable and independent variable? Suppose here you have relation of a straight line, y equals to mx plus c. Okay, now what are which y and x are what? Which one is your independent and which one is your dependent variable? X is independent Yes, variable. whereas y is dependent. Why? Because x is dependent on y. See, if we know the value of x, then we can find the value of y. That means y value is dependent on x. If x varies, then y also varies. Where these are the constant. Okay, this is the slope of the straight line, and this is one intercept. Okay, if suppose this is your straight line, this is denoted by this equation mx plus c. Okay, here will be your y axis, here will be your x axis. Okay, and this value intercept, sorry. Okay, so this is your c, this value. Okay, this value is c, and the slope is given by m. Okay, where y
will be in this axis, which is dependent variable, and x will be in this axis. Okay, and the equation is denoted by y equals to mx plus c. See, this equation, this is also known as the straight line equation, or we can say this is a model. Okay, why model? Because this straight line equation represents the relationship between these two variables. Okay, so here also we will find relationship between rainfall and runoff. Okay, and we will see which one will be your independent variable and which one will be your dependent variable. Okay, now anyone can say that in this equation whatever that we will find, मतलब जो भी हम equation निकालने वाले हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो एक तो डिपेंडेंट रहेगा और एक इंडिपेंडेंट रहेगा. अब तुम लोग का आइडिया क्या है, कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है? विच वन इज डिपेंडेंट? मैम रन ऑफ टा डिपेंडेंट और रेनफॉल टा इंडिपेंडेंट. वेरी गुड वेरी गुड. मतलब बारिश जैसा होगा उस हिसाब से रन ऑफ भी जनरेट होता है, राइट? रन ऑफ कैसा हो रहा है उस हिसाब से बारिश हम कैसा आ रहा है वो डिफाइन नहीं कर पा रहे, राइट? हम किसके ऊपर डिपेंड करता है कि रन ऑफ, इट इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. ओके, सो इसको अगर हम P करेंगे, इसको अगर हम R करेंगे, रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन को P से डिनोट करेंगे और रन ऑफ को हम या सरफेस रन ऑफ को हम R से डिनोट करते हैं. ठीक है, सो दिस इज योर x एंड दिस इज योर y. मतलब ये है तुम्हारा डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज रेनफॉल. ओके, सो ये इन दोनों का रिलेशन हमको चाहिए. ओके, सो इस हिसाब से देखो यहाँ पे दो कांस्टेंट हम बोले थे y. अगेन वी विल सी दैट दीज बोथ आर, मतलब ये लोग स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, मतलब दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड दे फॉलोज द स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप. हमको वही दिखाना है कि इन लोग का रिलेशन एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो वो मॉडल क्या होना चाहिए? तो मॉडल को अगर हम बोले थे कि y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये वाला इक्वेशन हमको चाहिए, जनरेट करना है. ओके, वी हैव टू डेवलप दिस मॉडल. अब यहाँ पे हम y बोल दिए थे, इट इज योर रन ऑफ. सो r, ओके, m के जगह पर हम लोग a एक कोफिशिएंट यूज करते हैं स्लोप के जगह पर. ठीक है, x के जगह पर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? p, सॉरी, r इक्वल्स टू a p प्लस b. ये एक रिलेशन हम निकालेंगे. ओके, तो यहाँ पे देखो रन ऑफ वी विल गेट, वी कैन एस्टिमेट और वी कैन कलेक्ट डाटा फ्रॉम आवर प्रीवियस डाटास. ओके, जो भी है प्रीवियस ईयर्स या पिछले कई 10 ईयर से जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है या पिछले मंथ कितने सारे मंथ से हम डाटा कलेक्ट करें, उस हिसाब से रन ऑफ हमको पता रहेगा, प्रेसिपिटेशन भी हम मेजर कर पाएंगे. ओके, अब ये दोनों वैल्यू हमको पता है, तो इस हिसाब से हम इन दोनों का ये रिलेशन हमको चाहिए. दैट मीन्स वी हैव टू डेवलप दिस मॉडल. और इस वाले को हम लोग बोल सकते हैं रेनफॉल रन ऑफ को रिलेशन भी बोल सकते हैं. बहुत सारे प्रॉब्लम में तुमको बोलेगा डिटरमाइन द रेनफॉल रन ऑफ को रिलेशन. ओके, तो हमको ये इक्वेशन ही जनरेट करने के लिए बोला गया है. अब इसमें हमको कौन सा चीज नहीं पता है? वी डोंट नो द ए वैल्यू एंड वी डोंट नो द बी वैल्यूज. ओके, अगर हमको ये दोनों तो हमको मतलब वैल्यूज हमको क्या बोलते हैं, हमको p का वैल्यू हमको पता रहेगा. ठीक है, तो उस हिसाब से हमको r निकल आएगा, लेकिन ये दोनों हमको नहीं पता है. सो वी हैव टू डिटरमाइन दिस. इन लोग का फॉर्मूला एक जनरेट करना पड़ेगा कि ये a और b हम कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं टू जनरेट दिस कांस्टेंट, दैट मेथड इज योर लीस्ट स्क्वायर मेथड. ओके, एंड यहीं पर तुम्हारा रिग्रेशन एनालिसिस भी कुछ आता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड जिसको बोलते हैं. ओके, अब इसी रिग्रेशन एनालिसिस से हम कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे ए एंड बी का. ठीक है, और इन दोनों के बीच में कोरिलेशन मतलब कि ये दोनों कितने कोरिलेटेड है, मतलब कि मतलब ये जो भी इक्वेशन हम डेवलप कर रहे हैं वो क्या बेस्ट है, एकदम बेस्ट डिफाइन करता है इन दोनों के रिलेशनशिप में, वो हमको चेक करना है. ठीक है, सो वहां पे एक आर का टर्म आता है विच इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोल सकते हैं इसको. ओके, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ओके, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी हम इसको बोल सकते हैं. तो इन दोनों का जितना अच्छा रिलेशन होगा, जनरली इट शुड बी ग्रेटर देन 0. आर का वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब तुम ही बोलो जितना अच्छा कोरिलेशन होगा इन लोग के बीच में, आर का वैल्यू इट विल टेंड्स टू 1. ठीक है, आर का वैल्यू जितना 1 होगा उतना ही हम बोल सकते हैं कि एनी रिलेशन
ठीक है, जिसको ये आर का जिसके जिस दोनों के मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हम आर कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल क्या है, इट इज रन ऑफ एंड रेनफॉल। ओके, तो किसी भी वेरिएबल्स का अगर आर का वैल्यू विच इज वेरी क्लोजर टू 1, देन वी कैन से दैट दे आर, जो भी इक्वेशन हम डेवलप किए वो एकदम परफेक्ट है, मतलब टुवर्ड्स परफेक्ट है, कि ये बेस्ट डिफाइन कर सकता है। ओके, सो आर का वैल्यू हमको इट विल सिग्निफाई व्हाट इज मतलब हाउ दिस रिलेशनशिप दैट वी हैव डेवलप्ड, वो क्या सही है, कितना सही है, सही तो है लेकिन कितना सही है। मतलब अगर तुम p का कुछ भी वैल्यू अगर पुट कर दोगे उस इक्वेशन में, ये वाला इक्वेशन में अगर कुछ भी तुम p का वैल्यू अगर पुट कर दोगे, तो हमको एग्जैक्ट आर का वैल्यू निकल आएगा कि हाँ करस्पॉन्डिंग पी के लिए इतना रन ऑफ होगा, इतना बारिश के लिए इतना ही रन ऑफ होगा, वो एकदम सही है। तभी बोलेंगे जब ये रिलेशन का आर का वैल्यू इट इज मोर क्लोजर टू 1। क्लियर? सो वी हैव टू चेक द को रिलेशन ऑल्सो, कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। ठीक है, अब जितना टेंस टू 0 होगा तो क्या होगा, उतना ये जो भी हम मतलब जो भी मॉडल हम जनरेट किए हैं, मतलब ये वाला जो भी हम इक्वेशन जनरेट किए हैं, दैट इज नॉट द बेस्ट मॉडल। ओके, मतलब कि वो मतलब p का अगर कोई भी हम वैल्यू दे देंगे तो वो जो r का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा, a और b का हम कैलकुलेट कर दिए, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट का वैल्यू रहेगा, और p का सपोज 20 mm दिया और यहाँ से कुछ एक वैल्यू आया r का, सो इट इज नॉट द मतलब वो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है कि हाँ एग्जैक्ट में ऐसा ही होना चाहिए, ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसका r का वैल्यू इट इज नियर टू 0, मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन 0 है, इसीलिए वो नियर्स टू 0 है, मतलब जो भी इक्वेशन आ रहा है वो सही हमको वैल्यू नहीं दे रहा है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का आंसर सही नहीं मिलेगा हमको। ओके, तो वी हैव टू चेक दैट आल्सो। तो आज का यही है हम लोग का कि रिलेशन पहले निकालो इन दोनों के बीच में, रन ऑफ रेनफॉल रिलेशन निकालो। ठीक है, वहां पे ए एंड बी जो है वो वाला कैसे निकलेगा, लीस्ट स्क्वायर मेथड से, उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, हम डिराइवेशन नहीं करेंगे, आई थिंक यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू द लीस्ट स्क्वायर मेथड, राइट? ठीक है, सिर्फ फंडा बता देंगे कि क्या होता है। ओके, और एक इक्वेशन आज जनरेट होता है, मतलब फॉर्मूलाज जनरेट होता है, वो थोड़ा याद रखना पड़ता है। ओके, बड़ा सा फॉर्मूला है, और दोनों का वैल्यू ए एंड बी का वैल्यू पुट करके वी विल फाइंड द मॉडल, मतलब वी विल जनरेट द इक्वेशन बिटवीन आर एंड पी। फिर उसके बाद वी विल सी कि जो इक्वेशन हम जनरेट किए हैं उन दोनों का को रिलेशन कैसा है, आर का वैल्यू क्या है, वही हमको चाहिए। ओके, तो लास्ट में एक प्रॉब्लम है, वी विल डू दैट वन। ओके, आई विल सॉल्व वन प्रॉब्लम, आई विल शो यू वन एग्जांपल, सेम टू सेम वैसा एक एग्जांपल दूसरा है, दैट यू हैव टू सॉल्व एंड सबमिट। ओके, क्लियर? यस मैम। ओके, तो देखो ये जस्ट हम ब्रीफली दे रहे कि क्या क्या मेथड है, तुम लोग क्या क्या पढ़ सकते हो। ये एम्पिरिकल मेथड है, ठीक है। हाइड्रोग्राफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल लर्न लेटर। ओके, इन्फिल्ट्रेशन कर्व, इट्स ऑलरेडी डन, इन्फिल्ट्रेशन कर्व से कैसे रन ऑफ आता है हम लोग का, ठीक है। कोफिशिएंट रन ऑफ ये भी होगा। अब आज का जो टॉपिक है वो है हम लोग का यही रेनफॉल रन ऑफ कोरिलेशन, मतलब यहाँ पर तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स का जो भी आ जाता है, ठीक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस सी, ये है एक रिलेशन, एक एग्जांपल हम दिए है कि वी हैव एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ रेनफॉल। ओके, मेजरमेंट किया हम लोगों ने रेन गॉज से या कुछ से भी, ठीक है, और फिर उसका करस्पॉन्डिंग जो भी रन ऑफ हो रहा है वो भी हम कैलकुलेट किए हैं, या मेजरमेंट फिजिकली जाके मेजरमेंट किए हैं, ठीक है। तो अब दोनों के बीच का एक रिलेशन हम ड्रॉ किए हैं, मतलब कि सपोज जब पेनिट्रेशन वाज दिस मच, मतलब ये वाला वैल्यू कितना है, सॉरी, जब प्रेसिपिटेशन रेनफॉल वाज अबाउट योर हम बोल सकते 1250, ठीक है। तो रन ऑफ कितना जनरेट हो रहा है, अगर इसको 4 भाग में कर देंगे तो अप्रोक्स 100, राइट, ये अप्रोक्स 100 mm है, ठीक है। और ये वाला कितना है तुम्हारा 1250 अप्रोक्स। ओके, तो एक कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। वैसे तुम्हारा बहुत सारा p का वैल्यू रहेगा, जैसे p1 p2 p3 ऐसा ऐसा रहेगा, तो उन लोग का कोरेस्पॉन्डिंग r1 r2 r3 ऐसा रहेगा। ओके, ऐसा कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू रहेगा। अब इन दोनों के बीच का हमको प्लॉट करना है ग्राफ। तो y एक्सिस में एज आई सेड x एक्सिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ यहाँ पे डिपेंडेंट कौन सा बोले थे हम, p बोले थे, राइट, p इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, इसीलिए इसको x एक्सिस में रख दिया। वेयर एज रन ऑफ इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, मतलब
P के ऊपर ये डिपेंडेंट है, सॉरी दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज द डिपेंडेंट, मतलब रन ऑफ इज डिपेंडेंट ऑन P, इसीलिए इसको डिपेंडेंट बोल रहे हैं, वेयर इट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आर को इसमें रख दिया, एक्स एक्सिस में करके हम प्लॉट कर दिया, वैसे बहुत सारा वैल्यूज मिलेगा, वी विल प्लॉट। ओके, अब ये वाला डायग्राम देखने से क्या लग रहा है तुम लोग का, इन दोनों का रिलेशन कैसा है, पी और आर का रिलेशन कैसा है? इस प्लॉट से what we can suggest that what is the how these both are related to each other? আছো নাকি? আছি ম্যাম। তো বলো, দেখে কি মনে হচ্ছে? स्ट्रेट लाइन होगा मैम। Independent. yes, approximately straight line, ठीक है, approximately straight line and it is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो जैसे जैसे रेनफॉल बढ़ रहा है तुम्हारा रन ऑफ भी बढ़ रहा है, नहीं ना, बढ़ रहा है ना, सो इट इज अ पॉजिटिव, राइट, दिस इज अ पॉजिटिव स्लोप। देखो अप्रोक्सली हमको लग रहा है कि ऐसा स्ट्रेट होगा, एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन होगा, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट क्या उसी स्ट्रेट लाइन से होकर जा रहा है, उस स्ट्रेट लाइन में आ रहा है पॉइंट्स। एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ किए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, तो क्या सब पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन में फिट हो रहा है? नो मैम। स्कैटर्ड No, हो, ma'am. स्कैटर्ड हो रहा है, राइट, स्कैटर्ड है, ठीक है, तो हमको देखना है कि इस स्कैटर्ड सब जो भी कोऑर्डिनेट्स है उसका हम बेस्ट फिट कर्व निकालेंगे। अब यहाँ पे कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन हम निकालेंगे। बेस्ट फिट का मतलब ये है कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सपोज ये वाला तो इसके अंदर आया, ओके, ये वाला भी इसके अंदर आया, ओके, ये भी आसपास में है, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस दिस, ये सब का क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग को एक ऐसा स्ट्रेट लाइन चाहिए कि बोल सके दिस इज द बेस्ट फिट कर्व, ठीक है, जिसमें तुम्हारा इन दोनों के बीच का गैप क्या है, इट इज द लीस्ट, मतलब जो भी आउटवर्ड है, स्कैटर जो भी ऑफसेट है, उन दोनों के बीच में जो भी तुम्हारा डिस्टेंस है, ऑफसेट डिस्टेंस है, वो कितना होना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम। ऐसे हमको एक स्ट्रेट फिट कर्व चाहिए हमको, ठीक है। अब यहाँ से तो बहुत सारा कर्व हम जनरेट कर सकते हैं, राइट, कुछ भी कर्व, एक ऐसा भी हो सकता था, राइट, एक ऐसा भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमने सिर्फ लाल को ही क्यों लिया? हमको देख रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि ये लाल से तुम्हारा जितना भी ऑफसेट है, ठीक है, ऑफसेट जितना भी है, ये वाला जो रेड रेड करके, ठीक है, अगर उसको हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, सो वी विल गेट द मिनिमम वैल्यू। वेरएज ब्लू वाले में अगर जितना भी ऑफसेट था, जैसे कि ये वाला, देखो ये ब्लू वाले से इतना दूर है, ठीक है, ये ब्लू वाले से इतना दूर है, ये इतना दूर है, ठीक है, अगर इन लोगों का हम स्क्वायर करके, इन दोनों का जो भी ये ऑफसेट वैल्यू है, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे सबका, तो देखेंगे कि ये रेड वाले से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली येलो का भी अगर देखेंगे तो येलो का भी अगर जो भी ऑफसेट है उसको ऐड करके स्क्वायर करेंगे तो सम कर देंगे तो देखेंगे कि उसका भी ज्यादा आ रहा है। सो सिर्फ रेड वाले के हमको क्या मिल रहा है, ठीक ठाक मिल रहा है कि इन दो सब का ऑफसेट डिस्टेंस, मतलब सब सब पॉइंट्स रेड वाले के पास पास में, इसका मतलब वही है कि सब पॉइंट्स वो रेड वाला स्ट्रेट लाइन के अगल बगल में ही है, ठीक है। तो इसीलिए हम इन तीनों में से इस रेड वाले को ही बोल सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट फिट कर्व, ओके, इसी को हम बोल सकते हैं दिस इज द बेस्ट फिट कर्व। अब यहाँ पे कर्व मतलब इट मे बी स्ट्रेट लाइन, एनी काइंड ऑफ कर्व, ओके, तो यहाँ पे जनरली स्ट्रेट लाइन है, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, अब यही हमको निकालना है, ये जो बेस्ट फिट, तीनों में से बहुत सारा लाइन तो आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन बहुत सारा आ जाएगा, लेकिन उसमें से कौन सा बेस्ट फिट होगा वो हमको चाहिए। तो उसके लिए तुम्हारा ये जो स्क्वायर मेथड, हम जो फंडा बोले थे कि इन दोनों का पहले स्क्वायर देखो, ठीक है, इन दोनों का ऑफसेट देखो पहले कि ये जो भी ऑफसेट है देखना कि कितना, मतलब अगर स्क्वायर करके मिनिमम कौन सा आ रहा है, इसीलिए ये टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, लीस्ट स्क्वायर मेथड, ओके। तो ये वाला जो बेस्ट फिट कर्व है उसके लिए हमको लीस्ट स्क्वायर मेथड हमको चाहिए, ओके। तो
अब देखो ये वाला नील का अगर हम करेंगे इक्वेशन एक आ सकता है, इसका सपोज एक रिलेशन है कि R इक्वल्स टू वही MP+C, इसका एक इक्वेशन आया, ठीक है। रेड वाला का अगर बोलेंगे तो R इक्वल्स टू AP+B, ओके। येलो वाला का अगर आया तो इसका आया तो R इक्वल्स टू क्या बोलेंगे KP+L सपोज, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन हमको, मतलब ये तीन इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इट विल रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन ओनली, राइट। मतलब ये ब्लू वाले का रिप्रेजेंटेशन ये वाला इक्वेशन है, ये रेड वाले का इक्वेशन ये है, ठीक है, और ये वाला येलो वाला या ग्रीन वाला का इक्वेशन ये है, ठीक है। अब इसमें से हम बोले थे कि इसमें से बेस्ट फिट ये वाला है, सो दिस इज आवर करेक्ट इक्वेशन, ओके। AP+B इज आवर करेक्ट इक्वेशन, मतलब यही हमको इतना सारे में से यही हमको बेस्ट फिट मिला है, तो हमको यही इक्वेशन जनरेट करना है या डिजाइन करना है या मॉडल करना है, इसको बोलते हैं जनरली मॉडल करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, ये अब यहाँ पे देखो A का वैल्यू हमको नहीं पता, B का वैल्यू नहीं पता, तो कैसे करेंगे, लीस्ट स्क्वायर मेथड से देखा गया है, वो एक प्रोसीड्योर है, वो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो एक लीस्ट स्क्वायर मेथड से, अच्छा हाँ, यहाँ पे A है तुम्हारा स्लोप, हम बोले थे B इज योर इंटरसेप्ट, ओके। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड से ये वाला देखो, ये है जो बोले थे ऑफसेट, इट शुड बी, ये जो इतना भी ऑफसेट है हम लेकर क्या करेंगे, स्क्वायर करके मिनिमाइज करेंगे। अब मिनिमाइज तुम लोग शायद मैथ्स में जब किए थे एचएस लेवल में तब किए हो, राइट, मिनिमाइज मैक्सिमाइज मिनिमाइज, तो वही प्रोसीड्यूर फॉलो करके ये लोग ए और बी का वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। तो निकालने के बाद ये जो भी ऑफसेट है सबको स्क्वायर कर दिया, फिर ऐड करके मिनिमाइज कर दिया है, ठीक है, दैट इक्वल्स टू 0 करके मिनिमाइज कर दिया है। तो अब उसी से ए और बी का करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ये निकल आया है आफ्टर मिनिमाइजेशन, ओके। तो ए का वैल्यू ये निकल आया है, सॉरी, ए का वैल्यू ये निकल आया है, ठीक है, और बी का वैल्यू ये निकल आया है। प्लीज नोट इट डाउन, एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन, ओके। एज आई सेड दिस इज आवर बेस्ट फिट कर्व रिलेशन या बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन रिलेशन जो हमको चाहिए था, उसमें हमको P भी दिया रहेगा, R भी दिया रहेगा, वी नो द वैल्यूज ऑफ P एंड R, राइट। उस हिसाब से हमको A और B का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ओके। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड से A और B का वैल्यू ये आ रहा है, so this is the formula, प्लीज नोट इट डाउन, ओके। इज इक्वल्स टू कैपिटल N, कैपिटल N मतलब है कि जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे हम बोले थे P1 P2 ऐसे करते करते Pn तक अगर जाएगा, सो दैट N इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। तुम लोग का करस्पॉन्डिंग R1 R2 ऐसे डॉट 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 जाके Rn तक, ओके। सो N is the number of observation or readings, okay। अब summation of P into R, अब ये वाला देखो, देखने से पता चला कि क्या है, समेशन P ब्रैकेट के अंदर है इनटू समेशन R, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन, प्लीज नोट इट डाउन दिस फॉर्मूला, ओके। या स्क्रीनशॉट लेकर रख दो अभी। और ये वाला A और B का हमको पता है, अच्छा A का वैल्यू कुछ भी आएगा यहाँ पे पुट कर दो, B का वैल्यू कुछ भी आएगा यहाँ पे पुट कर दो, सो वी विल गेट दैट स्ट्रेट फिट कर्व इक्वेशन, ओके। अब बोलेगा कि तुमको कोरिलेशन में निकालो, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, अच्छा है ना खराब है ना क्या है, ये इक्वेशन जो भी हम जनरेट किए है दैट इज गुड और बैड, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, R से पता चलेगा, जिसका ये वाला फॉर्मूला, एंड दिस इज दैट फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ओके। जनरली यहाँ पे बोले थे इट लाइज बिटवीन 0 to 1, ओके, एंड इट शुड बी पॉजिटिव, क्यों, देखो ये पॉजिटिव क्यों बोले थे हम, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट, स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिव स्लोप, इसीलिए इसको हम पॉजिटिव बोल रहे थे कि ये जैसे जैसे बढ़ेगा रन ऑफ भी वैसे वैसे बढ़ेगा, इसीलिए R का वैल्यू शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, स्लोप शुड बी पॉजिटिव, राइट। सो नहीं, R का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, एंड क्या बोल रहा है, क्योंकि बिकॉज R कैन हैव ओनली अ पॉजिटिव कोरिलेशन विद द रेनफॉल, ओके, P एंड द वैल्यूज ऑफ, अगर इस बीच में अगर आ रहा है मतलब कि ये सही रिलेशन है, ओके, R इज ओके, गुड रिलेशन। So this is the, everyone note it down this equation, okay, ये काम में आएगा अभी बाद में तुम लोग को, अभी ये नोट करो, ठीक है। Now we will solve one equation, अब इन सब का आइडिया लेकर हम सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है ये सब, सिर्फ देखो अगर ये याद रह पाएगा A का वैल्यू, सिर्फ ये याद रखो, बाकी अपने आप आ जाएगा। देखो क्या है, A का वैल्यू अगर याद रहेगा, ठीक है, सो वी नो द वैल्यू ऑफ A, कैलकुलेट करो,
तो इस वाले इक्वेशन से b का वैल्यू क्या होना चाहिए, b इज इक्वल्स टू r माइनस AP होना चाहिए था, ठीक है। तो वही देखो b इक्वल्स टू समेशन r माइनस a इंटू समेशन p बाय ऑब्जर्वेशन, इसीलिए डिवाइडेड बाय n कर दिया। ओके, सिंपल है। अब देखो इसी वाले इक्वेशन में नीचे क्या रहेगा एक्स्ट्रा, नीचे ये तो रह ही रहा है इनटू, अब p के जगह पर r बिठा दो, तो देखो n ये सेम रहा, ये वाला सेम है, राइट रहा, इनटू अब यहाँ पे p के जगह पर r बिठा दो और उसका अंडर रूट कर दो, तो ऊपर सेम है, ये भी ये है, ये भी यही है। ओके, तो सिर्फ ये वाला अगर याद रखोगे तो थोड़ा मतलब याद रख के ये बाकी दो फॉर्मूलाज भी हो जाएगा इजीली, उतना टफ नहीं है। क्लियर? Shall we go to the proceed to the problem? Any doubt? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay, so this is the problem. Okay, see क्या बोला है, given below are the monthly rainfall. Okay, rainfall मतलब P है। Okay, rainfall P, precipitation भी बोल सकते हैं, rainfall भी बोल सकते हैं, and corresponding runoff R. Okay, for the period of 10 months, मतलब ये क्या है, this is your N, कितना मंथ के लिए हम डाटा कलेक्ट किए हैं वही दिखा रहा है, ये देखो, ठीक है। सो n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो यहाँ पे 10 मंथ के लिए किए थे, तो n इज 10। डेवलप अ कोरिलेशन बिटवीन रन ऑफ एंड r, मतलब कुछ नहीं, r इक्वल्स टू a p प्लस b, ये निकालो बोल रहा है। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, a चाहिए, b चाहिए, और लास्ट में दोनों का कोरिलेशन चेक करने के लिए r चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे, हम लोग को जनरली फॉर्मूलाज में क्या क्या चाहिए था, सब समेशन ऑफ p चाहिए था, समेशन ऑफ r चाहिए था, pr को मल्टीप्लाई कर दो तो समेशन ऑफ pr चाहिए, फिर p स्क्वायर करो फिर समेशन ऑफ p स्क्वायर चाहिए, r स्क्वायर करो समेशन ऑफ r स्क्वायर चाहिए, बस उतना ही है। तो 4 ठो टेबल हमको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, विच आर दिस वन। ओके, तो देखो p r इज गिवन। ओके, अब pr मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू आएगा, ठीक है, फिर p स्क्वायर करके एक वैल्यू आएगा, ठीक है, फिर r स्क्वायर करके वैल्यू आएगा, सबको समेशन कर दो। Summation values are the, simply put those summation values in the corresponding a and b and r equation, then we will get the value। अब यहाँ पर formulas है, ठीक है, तुम लोग करो। First note down the problem। हम প্রবলেমটা কি খাতায় লিখবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা সাবমিট করতে হবে, স্ক্যান করে সাবমিট করতে হবে। কোয়েশ্চেনটা প্রবলেমটা লিখতে হবে। প্রবলেম না, এই কোশ্চেনটা তো দরকার তোমাদের, ঠিক আছে, এটা ছাড়ো, এটা আমি সলভ করে দিয়েছি। ওকে, লিভ ইট। ওকে, समेशन पी आ रहा है इतना, समेशन आर आ रहा है इतना, समेशन पी आर आ रहा है इतना, पी स्क्वायर इतना, आर स्क्वायर इतना। ओके, जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूलाज, वी विल सी। ए का वैल्यू आ रहा है 0.427, बी आ रहा है माइनस 1.928, 1.922। ओके, एंड आर का वैल्यू देखो अप्रॉक्स टू 1, मतलब जो भी रिलेशन आएगा, ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ओके, बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। अब दोनों के बीच का ये जो भी इक्वेशन जनरेट हुआ कितना अच्छा है, इट विल बी डिफाइंड बाय टर्म आर। हम ये ऑलरेडी बोले थे कि ये जो भी रिलेशन आएगा, मतलब पी का अगर तुम कुछ भी वैल्यू बिठा दो यहाँ पे, सपोज पी का वैल्यू तुम 1 बिठा दो, तो आर का जो भी वैल्यू आएगा मतलब वो सही है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अच्छा है, क्योंकि रिलेशन इन लोग का जो भी इक्वेशन हम जनरेट किए थे दैट इज गुड। व्हाई? बिकॉज आर इज क्लोजर टू 1, राइट, मतलब 0.6 से ऊपर हो जाने से अच्छा है। ओके, सो this is your first equation, first example. Now this is the problem that you need to solve. Okay, see, given below are the annual rainfall and corresponding runoff values in centimeter बोल दिया है, मतलब ये r क्या है, r rainfall क्या है, p है, runoff क्या है, r है, ठीक है, year दे दिया है, ठीक है, for 21 years। so n कितना होगा, कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, हम लोग बोले थे फॉर द पीरियड ऑफ 21, सो n इज योर 21। ओके, so develop a linear correlation equation to estimate
एनुअल रन ऑफ वॉल्यूम फॉर अ गिवन एनुअल रेनफॉल। देखो इसका फर्स्ट टॉपिक ही हम बोले थे क्या था, टू डेवलप एस्टिमेट द रन ऑफ, राइट। अगर तुमको ये इक्वेशन पता रहेगा, अगर ऐसे कुछ एक इक्वेशन जनरेट हो रहा है, अगर वो पता रहेगा तो ऑब्वियसली तुम पी का वैल्यू पुट करने से रन ऑफ कैलकुलेट कर ही सकते हो, राइट। तो दिस इज द वन काइंड ऑफ मेथड विच इज कोरिलेशन मेथड, ओके। तो जहाँ पे ये सब स्टैटिस्टिक्स थोड़ा यूज किया गया है, नॉट स्टैटिस्टिक्स, हमारा वो लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज किया गया है, ओके। तो प्लीज नोट इट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व। और हमको अगर हो सके तो अभी आंसर भी बता सकते हो किस किसने किया है। মানে এখনই করতে হবে? তো কখন করবে? আমি সাড়ে मतलब এই ক্লাসের মধ্যে করতে বলেছি, এটা তারপর সাবমিট করতে অনেক বলেছি। বড় হ্যাঁ জানি, এটা করো। খুব বড় তো ম্যাম। কি হয়েছে করো। ম্যাম সন্ধ্যেবেলার পর টাইম দিন না, তারপরে সাবমিট করে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ সন্ধ্যেবেলা। না না, তোমাদের সন্ধ্যেবেলা কোনোদিন ম্যাম হয় না। এখন শুরু করছি ম্যাম, এটা সন্ধ্যেবেলার খুব মধ্যে বড় submit ম্যাম, এটা করবো। বিশাল বড়। নেই 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 নেই, ম্যাম করো করো করো। সাবমিট করে দেবো, অনেক এরপরে তো ক্লাসও আছে। তার জন্য তো হ্যাঁ ম্যাম, তাড়াতাড়ি হ্যাঁ, ঠিক বলছে, আছে। এখন 10:30 বাজে, আরো 8 ঘন্টা আছে। হ্যাঁ আমরা 4টের মধ্যে সাবমিট করে দেবো। তোমরা করো, এখনই করো, বেশি বকো না। ম্যাম একবার ডিসকাস করে দেখুন না। করছো? কারা করছে দেখি। বড় তো, অনেক বড় ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম, বিকালের মধ্যে টাইম দিন না ম্যাম। উফ, এটা বেশি টাইম লাগে না। ম্যাম তাও বলছিলাম যদি দেন ভালো হয়। না আমি দেবো না। তাহলে ঠিক আছে, এটা খুব করো। বড় তো এটা। কালকে ম্যাম শিক্ষক দিবস গেল, আজকে যদি আমার কাছে সেটা চাই দেওয়া দরকার। ঠিক আছে তাহলে প্রথমটা করো তো। এটা এটাই করবো করো ম্যাম? তাহলে। হ্যাঁ ওকে ওকে। ম্যাম আগেরটা করবো না? যে করতে পারছো তাহলে করো, যদি মনে হচ্ছে করতে পারছো না তাহলে এই ফার্স্টটাই করো, ঠিক আছে। পরে আমাকে দেখাও। আমি তো ভাবছিলাম তোমাদেরকে লিস্ট স্কয়ার মেথডের ওই ফর্মুলা ডিরাইভ করতে দেবো, এ আর বি। আপনি করিয়ে দেবেন ফর্মুলা ডিরেক্টটা? না, তোমাদেরকে দেবো ভাবছি, যারা এখন সন্ধ্যেবেলা জানি না দিতে চাইছে। এ ভ্যালু কত এসেছে? আচ্ছা সামেশন পি সামেশন আর কত এসেছে বলো। ম্যাম করতে দিন, ম্যাম করছি। কোশ্চেনটা তো লিখবো ম্যাম। না রে, কোয়েশ্চেন কি এই টেবিল তো লিখতেই হবে তোমাকে, কোয়েশ্চেন না হ্যাঁ লিখলে। টেবিলটা লিখতে সময় লাগছে ম্যাম। ম্যাম আরেকবার খুলুন না। দেখছি দাঁড়াও একটু, দেখতে পাচ্ছ এবার? দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম। দাঁড়াও আমি এখানে দেখছি কারা কারা করছে। 37 স্টুডেন্টস, ওকে। রুকসার সামেশন অফ ম্যাম পি আর 659.2, 659। সামেশন অফ পি আর না, জানি না ম্যাম। সামেশন পিআর হুম না, 650 আছে কিন্তু 9 না। 653.2। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।
এখন করলে তোমাদের প্র্যাকটিস হবে, আর কিছুই না। বাড়িতে গিয়ে তো করবে না জানি, টুকবে শুধু। বাড়িতে গিয়ে কোথায় ম্যাম, বাড়িতেই তো আছি। মানে ওই এখান থেকে বেরিয়ে। সবাই নিজে নিজে করবে কিন্তু, ফর্মুলা আমি দিয়ে দিচ্ছি, দেখো এখানে আছে। ম্যাম পিআর এর সামেশন 653.2। হুম 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 হুম। ম্যাম একটু কোশ্চেনটা একটু দেখান ম্যাম। কি আনসার লিখে দিচ্ছ নাকি, এত মেসেজ আসছে? হ্যাঁ, আর এত মেসেজ বাজছে তাই? আমারই বাজছে, আর কার বাজবে না। আর এর সামেশনটা কি ম্যাম 33.3? হ্যাঁ, ওকে। সাবনি ভেরি গুড। ফর্মুলা কি দেখাতে হবে না, মনে আছে? মনে থাকবে না? ফর্মুলা স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছি। ছবি তোলা আছে ম্যাম, স্ক্রিনশট নিয়ে নিই। আচ্ছা, দশটা মোটামুটি সবাই আছে, ঠিকঠাক আছে। ম্যাম বলছি সামেশন অফ পি স্কোয়ারটা 2083। 2083। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম হুম হুম। 2083। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ম্যাম বাকিরা পি চুপ কেন স্কোয়ারের গো? টেবিলটার পর পরের টেবিলটা কি ছিল একটু বলবেন, মানে পি স্কোয়ারের পরটা কি বার করতে হবে? টেবিল, এই ফর্মুলা দেখ, ফর্মুলা দেখ কি কি লাগবে তোর। জাস্ট সি দ্য ফর্মুলা। আর কি কি লাগতে পারে? ম্যাম আর আর হুম। অরিন্দম আছো? কোনো রেসপন্স নেই। 37 দেখাচ্ছে তো এখানে, তো কোথায় গেল বাকিরা? ম্যাম সুদীপ্ত আর্টস না? স্কয়ার 217। হ্যাঁ ম্যাম এ কি 0.427? হ্যাঁ, ভেরি গুড। আর স্কোয়ার 217। হ্যাঁ। ম্যাম নেটওয়ার্কের ভীষণ প্রবলেম হচ্ছে, লিভ করে যাচ্ছি ম্যাম বারবার। ম্যাম এবার কি আর করতে হবে? ও হ্যাঁ, অবভিয়াসলি তোমাকে রিলেশনটা বার করতেই হবে গো। না বললেও করে দাও, ঠিক আছে? তোমারই সুবিধার জন্য, তুমি যে ইকুয়েশনটা বার করেছো চেক তো করতে হবে। সামেশন অফ পিটা কি 123 তো? হুম। পি। হ্যাঁ। হ্যাঁ। এনটা কি ম্যাম? এনটা 10 তো ম্যাম? এনটা 10 মান্থস বলেছে তো, এনটা so 10। that will be হ্যাঁ 10 number of observation। ওকে ওকে। সোমা হালদার আছো? রুকসার খাতুন?
प्रेजेंट देके चले गए क्या सकते। এন এর ভ্যালুটা একটু কত ছিল কোয়েশ্চেনটা দেখাবেন? Sorry, number of observation is 10. Okay, you have collected data for 10 months. 10 সৌরভ হাজরা কত এসেছে আনসার? এ বি? ম্যাম চলছে এখন। ও 0.427। হুম। व्हाट अबाउट द अदर्स? बाकी लोग कर रहे हो ना? ये सबमिट करना है 38 जितने जन भी हो Yes, sir, yes, sir. सबको। पुलक, प्रतीक, मनिरुल, दीपशानु, सौरभ, सिमोन, शुभजीत, विश्वजीत, कौशिक, इप्सिता, सायद, सुदेशना, सौरभ, शुभजीत, सुदीप्तो, प्रीतम, शुभदीप सरकार, सौम्य हलदार, पृथा, पूर्णिमा, सुमन, सनुश्री, रुखसार की आछो आदो, सौभिक मैती, सौभिक, अयन मंडल, अनुपमा बर्मन, अर्पण पॉल, साग्निक, श्यामश्री, पायल, देवराज, त्रिनांजन, शुभेंदु, सुब्रत, आसिफ, अरिंदम, त्रिशा, देवज्योति, नाजेश, नीलाद्री, कौशिक, हीरक, विकास सिंह। विकास सिंह फर्स्ट टाइम अटेंड किए हुए ना? ये फर्स्ट क्लास है क्या? यस मैम। बाबा कर रहे हो? बाकी क्लास सब अटेंड किए थे? आई मीन देखे हो नोट्स वगैरह? पहला दिन है मैम आज। मैम वो तो पता है, लेकिन उससे पहले तो गूगल क्लासरूम में तो बहुत सारा नोट्स अपलोडेड है ना, वो सब देखे हो? वही पूछ रहे हैं। नहीं मैम बिजी थे, नहीं देखने पाए। ठीक है देखना, लेकिन ठीक है मैम देख लेंगे मैम। ম্যাম বির ভ্যালুটা কত আছে? ঠিক আছে। বি কত এসেছে তোমার? বি নেগেটিভ ভ্যালু চলে আসছে তো। यस 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 -1.9 something. हम्म। ম্যাম এর ভ্যালুটা কি 0.27? माइनस 0.909 তো আসছে। डी इज -1.922। ম্যাম এর ভ্যালুটা তো আমার এটা আসছে না। ए इज 0.427। এই আমার নেগেটিভ ফর্মুলা ইউজ করেছো? বি উইল বি নেগেটিভ অনলি। ফর্মুলা দেখো, ফর্মুলা কি ঠিকঠাক করেছো? n summation of pr ম্যাম minus এর ভ্যালুটা আমার 0.27। minus p summation p into summation r by n summation p whole square, p square का summation minus summation p का whole square। ये याद रखो। फिर ये इक्वेशन तो देखो, এটা just see this formula। এর ভ্যালুটা ম্যাম আমার 0.27 আসছে। কেন গো? তোমার সামেশন pr কত এসেছে? 653.2।
চাকনি স্কোয়ার করে সামেশন করেছিলিস? না না, আমি সামেশন অফ পি আর পি আরটাকে সামেশন অফ পি ইন্টু সামেশন অফ আর করে দিচ্ছি। সে তো এখানে এই কন্টেন্টে দেখো। আমি তার আগেরটা করে দিয়েছি, ওই এন ইন্টু সামেশন অফ পি আর আছে না, আমি ওটা সামেশন অফ পি ইন্টু সামেশন অফ আর করে দিয়েছি। এই তো তার জন্য বলছি ভালো করে দেখো ফর্মুলা, ওকে এটাই ওকে, আমি করছি। মিস্টেক হয়ে যায়, তাই তার জন্য করতে বললাম তোমাদেরকে। হাতে করলে মনে থাকবে, ভুলটা হলেও পরে মনে থাকবে। আচ্ছা এখানে ভুল করেছিলাম। বাকিদের কি খবর? ম্যাম সামেশন অফ আর স্কোয়ার 217.01। সামেশন অফ আর স্কোয়ার, হ্যাঁ, হোল স্কোয়ার না, শুধু স্কোয়ার। ও ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার হ্যাঁ 33.3, तो कैपिटल आर तो ओ आर स्क्वायर का है तुम्हारा 217। हाँ 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 ठीक है मैम। कौन सा? ম্যাম এই 653.2টা কিভাবে পেলেন ম্যাম? এই তো সামেশন করে পিআর করো আগে সবকিছু 4 ইনটু 0.2 0.8 22 ইনটু 7.1 এত করলাম সবকিছু সামেশন করো। আচ্ছা 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 আচ্ছা, পি আর, ওকে 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 ম্যাম। পিআর তারপর সামেশন। কারো কি আদৌ এসেছে এই ভ্যালু গুলো নাকি ভুলভাল এসেছে সবারই? ম্যাম এসছে, ফার্স্ট দুটো এসছে আর ম্যাম একটা হয়ে ও ম্যাম আর আসছে না, কেন আসছে না? জানি না ম্যাম, অনেক ভেঙে ভেঙে 2-3 বার করলে আসছে। ফুল পিতাম ঠিকঠাক কর। ম্যাম আর বের করতে হবে। এইটুকু তুমি এ বার করেছো, পি বার করেছো, আর বাড়তে কি আছে? ঠিক আছে ম্যাম। 3বার করে ফেলেছি অলরেডি, তাও তো আসছে। দেখো দেখো এই সিম্পল ক্যালকুলেশনই তোমাদের ভুল হচ্ছে। মানে ধরে নিই তো, ক্যালকুলেটর ভুলে গেছি কোনটা কি মারতে হয়। ম্যাম তাই এটা সেটার কি জন্য 0.1 করো ভাঙতে হবে মানে ম্যাম কি গো? এটা 0.13। এ ম্যাম হচ্ছে এটা 0.427। 0.399। দেখো ফর্মুলা এখানে দেখো, আমি বড় করে দিচ্ছি যাতে আরো ক্লিয়ারলি দেখতে পারো। দেখতে পাচ্ছো কৌশিক ফর্মুলাটা? ম্যাম আমার এ 0.399 বেরোলো। এই তো आगे सी द टेबल, ये टेबल सबका बना है। पहले देखो समेशन पी आ रहा है 123, ठीक है। समेशन आर आ रहा है 33.3, ठीक है। तो पहले एक टेबल बनाओ, कॉलम बनाओ पी इंटू आर का, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सबको, पी इंटू आर, ठीक है, करके सम कर दो। आ रहा है कितना 653.2 पी आर का समेशन। फिर p का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर 16 22 स्क्वायर 484 कर दिया, सबका कर दिया p का स्क्वायर। फिर समेशन सबको ऐड कर दो, वो आ रहा है 2083, ठीक है। और r का भी होल स्क्वायर करके समेशन कर दो सबको, ठीक है। आ रहा है 217। पहले ये मैच करो, सबका ये वाला वैल्यू मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी तुम्हारा आंसर आएगा। ম্যাম ইকুয়েশন তৈরি করতে হবে। স্মল আর ইকুয়েশন তো তোমার তো রেডি হয়ে গেছে, এ জানো পি বি জানো। বলো কি বলছিলে কৌশিক, কি বলছিলে বলো কৌশিক, না কে কি বলছিল মাঝখানে? স্মল আর का वैल्यू 0.99। হ্যাঁ 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 স্মলার का 0.99। আচ্ছা প্রতীক কি বলছিলে তুমি? ম্যাম আমি বলছিলাম ইকুয়েশনটাকে তৈরি করতে ইকুয়েশনই হবে তো নাকি? তৈরি করতে বলেছে রে বাবা তোমাকে। ম্যাম এসে গেছে ভ্যালু। ফাইন্ড দ্য কোরিলেশনই তো বলেছে। তাহলে ম্যাম তুমি হয়ে এ গেছে। যদি বার করো বি যদি বার করো তো কি এ বি তে ভ্যালু পুট করে দাও, সিম্পল, আর কিছুই তো না, হয়ে গেছে। রাইট। আর আরটা হচ্ছে কি ওদের যে যা ইকুয়েশন বার করেছো তার রিলেশনটা কেমন, মানে হাউ দে আর রিলেটেড। যত টুয়ার্ডস ওয়ান হবে আমি যে কি বলেছি ততই ভালো রিলেশন, রাইট। তো 0.99 আমাদের রিলেশনটা।
সাগনিক ভুলটা কি ধরে ফেলেছো, কোথায় ভুল করেছো? না না করছি ম্যাম হয়ে গেছে। ওকে, করো করো, করে সাবমিট করতে হবে, ঠিক আছে? যাদের হয়ে গেছে তোমরা স্ক্যান করে সাবমিট করে দিতে পারো। আই থিঙ্ক ওটা আপলোড হয়ে গেছে ক্লাস ওয়ার্ক, ইউ ক্যান সাবমিট ইট দেয়ার। বিকাশ তুমি কর দো। ম্যাম ওখানে তো অন্য ওই সেকেন্ড ম্যাথটা দেওয়া আছে। সে ছেড়ে দাও, এটাই করে দাও, ওটা আমি চেঞ্জ করে দেবো নাহলে। সেকেন্ড হ্যাঁ, ম্যাথটা হয়ে গেছে। তোমরা বাড়ি গিয়ে প্র্যাকটিস করবে, আই মিন বাড়িতে বসে প্র্যাকটিস করবে। ওকে, বাকিদের দেখে নাও একবার, এটা নোট ডাউন করে নিতে পারো, अदरवाइज आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द पीडीएफ, यू कैन गो थ्रू इट। ओके, आई थिंक ये उतना टफ नहीं है, सिर्फ तुमको इसमें यही पहले ये ठीक ठाक कर देना है, फिर सिंपल फॉर्मूला में बिठा देना है। ओके, कोरिलेशन बोलेगा मतलब यही है, रिलेशन क्या निकालो, रिलेशनशिप क्या है इन दोनों का, यही है रिलेशनशिप, और इन दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या है, सो दिस इज द कोरिलेशन। अब ये रिलेशन निकालने के लिए ए चाहिए बी चाहिए, ए का ये फॉर्मूला बी का ये फॉर्मूला, सिंपल। ओके, सो पी एंड आर विल बी प्रोवाइडेड। सेम ये वाला भी वही है, सेम टू सेम, सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थोड़ा ज्यादा हो गया, 21 हो गया, थोड़ा लंबा हुआ। ओके देन फाइन, आई थिंक उतना मतलब वो नहीं है कि डाउट वाउट ऐसा है, कुछ नहीं है। ओके, हम नाम बुलाए थे, आई थिंक सबने सुना होगा, जिसका नहीं सुने हो यहाँ पे लिख दो नाम, एंड डिसमिस फॉर टुडे। ओके, লিভ করতে পারো যদি হয়ে গেছে তো যাদের। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ম্যাম এটাই ছবি তুলে আপলোড করে দেবো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাম রাফ কপি কিন্তু কাটাকুটি আছে। ওকে, রাফ ওটাই তো চাই আমি, করেছো না কি করেছো, ঠকেছো না কি করেছো, সেটাই তো দেখতে চাই। নিজে করলেই হলো, আর কিছু না। ম্যাম এটা কি সুন্দর করে লিখে আপলোড করবো না যেটা আছে ওটাই আপলোড করে দেবো? সেটা তোমার উপর বাবা। রুল টানা পেজে করা যাবে তো ম্যাম? রুল টানা পেজে করেছি। সব এখন অনলাইনে সব অ্যাপ্লিকেবল। তুই মোবাইল নোটপ্যাডে করে দে সাগনিক। না খাতা